शांति। आज के इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारी वेस्ट कोस्ट यूएसए और कनाडा की तरफ से यह सुंदर प्रोग्राम नए सुबह की नई किरण में आप सबका स्वागत है। मैं रौनक भाई से अब अनुरोध करती हूँ कि यह प्रोग्राम आगे बढ़ाए। Thank you very much, Sukanya Ben. Namaskar and Om Shanti. A very warm welcome to you all from West Coast, USA, for an exclusive event with our sister Shivani on topic of Nai Subah Ki Nai Kiran. On this first day of 2022, a very happy, healthy, and spiritual 2022 to you all. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सबको यहाँ मैं वर्चुअली देख सकता हूँ। मेरा नाम है रौनक देसाई एंड प्रोफेशनली मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग हूँ सिस्को सिस्टम्स में। Just to share a single sentence on Cisco, what we do, we're able to communicate virtually here and use internet to do our work, to live our life and play because of some of the technology we've built at Cisco. Enough about Cisco. This event is about Sister Shivani. So Sister Shivani, a very, very warm welcome and thank you for joining us early in the morning. So good to see you. सिस्टर शिवानी को इंट्रोड्यूस करना माना छोटी सी कैंडल लेके सूरज के सामने जाना। सो आई विल नॉट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस। ग्रुप ने आपका स्वागत के लिए बहुत तैयारी की है। They would be delighted to get your drishti and blessings. So Harsha, if we can spotlight on our stars and faristas for all of us, that would be great. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अभी सिस्टर चंद्रू is also with us to welcome Sister Shivani and all of us. A very warm welcome, Sister Chandru. It's so good to see you. Can you please share a few words to welcome everyone and our special guest, Sister Shivani? ओम शांति। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे देश के लोग, इतने सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं, तो आपके लिए इकट्ठे हुए हैं। और कितना ना भाग्य बन गया है हम लोगों के लिए, और कितना हमें ऊंचा भाग्य बना रहे हैं। आप कैसे हो? बढ़िया दीदी, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आपको देख के अभी हमें बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। शुक्रिया तो आपको है। Thank you, Sister Chandru, for a very warm welcome to Sister Shivani. Just wanted to take a few moments to share my experience. मैं I think शायद 8 या 9 साल का था तब से हम ब्रह्मा कुमारी में फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो almost 40 years. You know, just to share my experience, it has helped me tremendously in my personal life and professionally by following some of the principles which we learn at a BK Center. Learning to meditate bachpan mein has helped me with focus on what I wanted to pursue. And it also helped me keep my state of the mind in balance. बहुत लोग मुझे वर्ड पे बोलते हैं कि how can you smile in even the toughest situation? And मेरा आंसर सबसे सिंपल रहता है कि सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो I always look at it saying that they are just playing that part and I need to play my part and look at everything in a positive way. Has helped me in this last interesting 20 months. I know Sister Shivani always बोलती है कि
what you say, it becomes you. So I never say this was a tough time. I always say it's an interesting time. And we as a community and individual have become more resilient to all the challenges, right? And this has been a great learning opportunity. So with that, I would like to invite Sister Shivani to share her insights and thoughts and what we should be all doing in 2022. With that, Sister Shivani, if you could just enlighten us. Thank you so much, brother. And really, the platforms that all of you all have created and worked hard on so many years, of course, it's always benefited the world, but I think never more than what's happening right now. What's happening right now. So even अगर हम सब देखते हैं कि हम सब को कितनी आदत है कि हम सेंटर पे जाते हैं, बाबा की मुरली रोज सुनते हैं, और 1937 से ये कभी हुआ ही नहीं कि सेंटर पर जाकर मुरली सुनने का चांस न मिले। लेकिन कोविड ने वो करके दिखाया जो कभी नहीं हुआ था यज्ञ में। लेकिन उस समय साइंस के साधन, एंड बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं ये साइंस के साधन आपके बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। तो हम सोचते थे हाँ हम फोन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, ये साइंस के साधन हैं। लेकिन बाबा ने हमें दिखाया कि साइंस के साधन सेवा में कैसे काम आए हैं, है ना? कितना सेवा में काम आए हैं कि भले हम सेंटर नहीं जा पा रहे ऐसे, लेकिन लगता ही नहीं कि हम सेंटर नहीं जा पा रहे, फील ही नहीं होता। और ही इतने सारे बाबा के बच्चे घर बैठे, आई कैन नेवर इमेजिन कि घर बैठे कोई ज्ञान को समझ ले एंड परमात्मा को पहचान ले और मुरली स्टडी करना शुरू कर दे एंड धारणाओं पे भी चले। नेवर थॉट दिस वाज एवर पॉसिबल। हम क्या सोचते थे, हर एक को क्या बोलते थे, नहीं पहले आपको आना पड़ेगा, आपको सेंटर आना पड़ेगा, सेंटर आए बिना कैसे हो सकता है ये। बाबा दिखाता है, असंभव को संभव करके दिखाता है। और आजकल तो भारत में हम जब मानेसर ORC रिट्रीट सेंटर में रिट्रीट्स करते हैं तो हर थोड़े हफ्ते के बाद एक रिट्रीट होती है कि जूम से पैदा हुए बाबा के बच्चे, उसका रिट्रीट होती है। मतलब दैट इज अ गुड हॉल फुल, इट्स अ गुड हॉल फुल। तो ऐसा लगता है कि ये तो और भी फास्ट हो रहा है। तो उनका नाम ही होता है बाबा के जूम से पैदा हुए वाले बच्चे हैं। तो बहुत विशेष हैं जिनके लिए बाबा ही उनके घर में घुसकर उनको जन्म दिया है ना? तो इसीलिए ये सारे साइंस के साधन और सब जो इन पर इतनी मेहनत करते हैं, रौनक भाई हम सब की तरफ से उन सबको बहुत दुआएं रेडिएट करना, हम सब की तरफ से बहुत शुक्रिया करना कि हम सब अलग अलग जगहों पर बैठ के फील ही नहीं करते अब कि हम अलग तरह के बैठे हैं, बहुत कनेक्टेड हैं। एंड इट्स ऑल्सो गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि इस 2 साल में अगर ये साइंस के साधन न होते तो शायद हो सकता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए लेकिन हो सकता है कि हमारी स्थिति थोड़ी सी कम हो जाती, क्योंकि 2 साल हम ना एक दूसरे को मिलते, ना परिवार में जाते, ना सेंटर पे जाके मेडिटेशन करते। हो सकता है कि थोड़ी डिप हो जाती, लेकिन ये साइंस के साधन ने तो क्या किया, डिप होने की बजाय और ही ऊपर चली गई है, क्योंकि तपस्या कर रहे हैं, रेगुलरली मिल रहे हैं। और अब तो इतना अच्छा हो गया, ट्रैवल किए बिना भी सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये पूरे 2 साल में मधुबन क्या, विदेश क्या, सब ऐसा लगता है एवरीबडी इज वन। So truly when we say that global village, no, this online is really making us feel that कि हम हर थोड़े दिन बाद कभी जयंती बहन से मिल रहे हैं, कभी वहां से मोहिनी बहन से मिल रहे हैं। So you don't feel anything. So this is the magic of Baba, of course, of touching all these special souls in science to create all these inventions. And of course, lots of blessings to each one of them because they work very hard to bring all this to the world. तो पूरे परिवार से की तरफ से रौनक भाई आप सबको बहुत 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 शुक्रिया भी देना और बहुत सारी दुआएं भी देना, और उनको कहना कि जितनी वो मेहनत करते हैं उनको दुआएं बहुत मिलती हैं। सिर्फ धन नहीं मिलता है, इस सेवा से सिर्फ धन नहीं मिलता है, लेकिन दुआएं बहुत मिलती हैं और दुआएं उनके पूरे परिवार को मिलती हैं। लेकिन साथ साथ हमने इस 2 साल में ये भी देखा कि जो अभ्यास बाबा हमें इतने वर्षों से करा रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बाबा हमें हमेशा कहते
37 से ही कह रहे होंगे, हमने तो सबने बाद में मुरली सुनी, लेकिन बाबा कहते बच्चे अचानक का पाठ पक्का करो, अचानक का पाठ पक्का करो। तो हम सोचते थे हाँ अचानक हम बीमार हो सकते हैं, अचानक कोई शरीर छोड़ सकता है, इतना ही अचानक हम प्रैक्टिस करते होंगे कि अचानक ये हो सकता है। लेकिन बाबा हमें बहुत बड़े बड़े अचानक के लिए तैयार कर रहा है कि अचानक सृष्टि पर कुछ भी हो सकता है, नॉट जस्ट इन पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ, लेकिन ऑन अ ग्लोबल लेवल अचानक एक बात ने पूरी सृष्टि पर इम्पैक्ट डाला है अचानक। लेकिन क्योंकि हम हर रोज बाबा की मुरली को स्टडी करते हैं, सी द पावर, जो बाबा कहते हैं ना रोज मुरली सुनो क्यों, उसका पावर ये है कि जो कि हम रोज मुरली स्टडी करते हैं और रोज बाबा के परमात्मा के महावाक्य अंदर रिकॉर्डेड होते हैं कि अचानक कुछ होगा, अचानक कुछ होगा, और हमें स्थिर रहना है। तो जब वो अचानक कुछ हुआ, हमारे लिए स्थिर रहना इजी हो गया, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा। हाथ उठाओ, किस किस को लगता है हम इस अचानक के पाठ में स्थिर होकर क्रॉस किया, स्थिर होकर क्रॉस किया ना। सी, तो बाबा को कितना शुक्रिया करना चाहिए, कितना शुक्रिया करना चाहिए कि बाबा आपने हमें पहले ही तैयार कर दिया। सो इट्स लाइक अ टीचर जो एग्जाम से पहले क्वेश्चन बता देते हैं, है ना रौनक भाई, एग्जाम से पहले क्वेश्चन बता देते, क्वेश्चन आने वाला है और आंसर भी बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, आपको ये आंसर उसमें लिखना है। और जैसे ही वो क्वेश्चन आता है, वो टीचर ने बच्चों को तैयार करके रखा होता है। लेकिन अब हम उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए कि हम तो स्थिर हो गए, हम तो स्थिर हैं, लेकिन जैसे बाबा ने अभी 31 की मुरली में भी क्या कहा कि बच्चे अब एक भी आत्मा नहीं रहनी चाहिए जिसको ये न पता चले कि परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा रहम आना चाहिए कि आपको तो आंसर मिल गए, लेकिन अभी तो और भी क्वेश्चंस आने हैं, अभी तो और भी क्वेश्चंस आने हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस जब आएंगे और बाबा ने कहा, वो कहेंगे आपको आंसर पता था ना, जस्ट विजुअलाइज अ क्लासरूम, ओके, विजुअलाइज अ क्लासरूम जिसमें 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें से 5 स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले ही टीचर ने क्वेश्चन बता दिया, 45 को नहीं बताया, 5 को ही टीचर ने बताया, और टीचर ने वो 5 को कहा था कि आपको बाकी 45 को बताना है कि ये क्वेश्चन आएगा और ये इसका आंसर लिखना है। तो वो 5 की तो अच्छे से तैयारी हो गई क्योंकि उनको पहले से क्वेश्चन पता था, आंसर भी पता था। लेकिन वो 5 इतने हैप्पी थे कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर पता है, कि वो अपनी लाइफ में इतनी हैप्पी चल रहे थे कि उनको भूल ही गया कि मुझे बाकी 45 को भी बताना था। जिस दिन एग्जाम पूरा होगा और वो 45 को पता चलेगा कि वो 5 को ऑलरेडी क्वेश्चन और आंसर दोनों पता थे, तो वो 45 उन 5 का क्या करेंगे? एक सीन को सामने लेकर आने की जरूरत है कि वो 45 उन 5 का करेंगे क्या, क्या करेंगी उनका? हाँ, तो बाबा सेम कहते हैं बच्चे वो सब बोलेंगे आपको पहले से पता था, आपको ना तो सिर्फ पहले से पता था, आपको तैयारी करने का भी इतना टाइम मिला, आपने अपने अंदर इतनी पावर भरी और इसीलिए तो आप इतनी स्टेबिलिटी से क्रॉस कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा जिम्मेवारी बन गई है, जिम्मेवारी तो हमेशा ही थी, लेकिन अब तो जैसे एग्जाम तो बस आया कि आया, शुरू ही हो गए हैं एग्जाम्स, तो एग्जाम तो एक के बाद एक आता जाएगा। तो इस टाइम बाबा ने जो 31 को हमें कहा है, इसको बहुत सीरियस होकर पकड़ना है। हम सब हमेशा ही सेवा करते हैं, तो सेवा का तो हम सबको बहुत उमंग है, लेकिन अब हमें सेवा को मनसा लेवल पर जरूर और पक्का करना है, क्योंकि यूजिंग द पावर ऑफ वर्ड्स हम में से एक एक हर एक तक नहीं पहुंच सकता है। जैसे सपोज ये 5 हैं और वो 45 हैं, ये 5 एग्जाम से पहले हर एक के घर जाए और उसको बताए कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये 5 एक मैसेज बनाए, एक मैसेज बनाए, फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसमें एक बार पेस्ट करे और सबको मिल जाएगा। That's how simple it is. That's how simple it is. But going and telling each one is not possible. So similarly, बाबा ने हमें वो तरीका दिया है कैसे एक बारी में ही हम पूरी सृष्टि पर वो मैसेज रेडिएट कर सकते हैं। जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम एक बार डालते हैं, सबको मिल जाता है, हमें एक एक को नहीं देना पड़ता है। तो उसी तरह
बाबा एम्फेसाइज, इस बार की मुरली से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पकड़नी है। बाबा ने कहा एक संकल्प को पकड़े, एक संकल्प को पकड़े, उस स्थिति में स्थित हो जाए, और कितने मिनट्स तक बोला करना है, कितने मिनट्स तक बोला उस संकल्प की स्थिति में रहना है? 10 minutes. And I distinctly remembered this Murli when it actually happened in 2002. And 10 minutes. And then अगर आप पढ़ेंगे 15 दिसंबर की मुरली, वो इस साल की, ये 31 दिसंबर की है, तो 15 दिसंबर की मुरली में बाबा ने कहा 10 minutes after every 1 hour, which means 24 times 10 minutes you are going to stop and stay in that sankalp and then radiate it to the world. तो वो सब लोग वो 15 दिन 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 10 मिनट्स कैसे रुक सकता है कोई हर आवर के बाद? 24 times 10 minutes, वेरी डिफिकल्ट। सो फिर वो भगवान है, वो पेरेंट है, वो टीचर है, तो उसने नेक्स्ट टाइम बोला ओ आपको होमवर्क बहुत मुश्किल लग रहा है, आप नहीं कर पा रहे 10 मिनट्स, कोई बात नहीं, आप 9 मिनट्स करो। फिर देखा इस तरह कोई ऐसा बहुत पॉजिटिव एंथुजियास्टिक नहीं दिखा होगा 9 मिनट्स के लिए भी, तो फिर बाबा ने कहा अच्छा 8 मिनट्स, यू नो, यू हैव टू लिसन टू दैट पार्ट अगेन वेरी वेरी क्लियरली, अंडरस्टैंड दैट व्हाट ही एक्चुअली मीन्स इज 10 मिनट्स, इट्स 10 मिनट्स। बट हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनके डायरेक्शन को, हम कह रहे हैं नहीं हमारे पास बहुत बड़ी सेवा और बहुत काम है, हम ये 10 मिनट्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा फोकस कौन सी सेवा पर होता है? जो दिखती है, हमने ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है, तो हमें लगता है इससे सेवा हो रही है, जो कि तो होती ही है, लेकिन वो भगवान है, वो भगवान है, उसको पता है कि ये मैसेज ऐसे नहीं जा सकता जो हम कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें ऐसे मास में मैसेज भेजना है। वो कैसे जाएगा? वाइब्रेशन के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू। सो बाबा लुक्स एट अस एंड सेज 10 मिनट्स। वी लुक देयर विदाउट नॉडिंग आवर हेड, या तो हमें इमीडिएटली करना था हाँ जी यस यस बाबा 10 मिनट्स, ही सॉ वी've not said yes, so then he said 9, no more yes, he said 8, no more yes, he says 7, no more yes, he said 6, no more yes, then he said 5, still no more yes, he said that's it, 5 is 5, इससे कम आप नहीं कर सकते, भले अब आपको ये बात सही लगे नहीं लगे, आप मानो न मानो, you have to do 5. He didn't say 4 3 2 1, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। तो 10 and then after saying 5 also बाबा ने कहा लेकिन पहुंचना तो 10 मिनट तक है। अंडरलाइन करनी है वो बात को। हमने नोट नहीं किया, हमने भगवान की बात को स्वीकार नहीं किया, तो उसने एक बच्चे की बच्चे के साथ कैसे बात करते हैं, तो बच्चे को हम बोलते हैं 2 घंटा पढ़ो, बच्चा ऐसे सल्ट करके हमारी तरफ देखता है, तो हम कहते हैं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप 1.5 घंटा पढ़ो, वो फिर भी ऐसे देखता है, कम ऑन मैं 1.5 घंटा कैसे पढ़ूं, आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू। फिर हम कहते हैं अच्छा 1 घंटा पढ़ो, वो फिर भी सल्ट करता है, नॉट हैप्पी। पेरेंट कहता है इनफ नाउ, ठीक है 1 घंटा तो पढ़ना ही है, whether you like it or whether you don't like it, 1 घंटा तो आपको पढ़ना है। बाबा has done exactly like that and we better take that seriously, क्योंकि ये होती है टीचर की एग्जाम से जस्ट पहले की टिप्स एंड टेक्निक्स। एक होता है पूरा सिलेबस पढ़ना, और एक होता है एग्जाम से पहले वो टिप एंड टेक्निक मिलना कि अभी टाइम नहीं बचा पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए, आप ये टिप एंड टेक्निक करो, आप भी पास हो जाओगे और आपके पास होने में बाकी सारे भी पास हो जाएंगे। तो ये है वो टिप एंड टेक्निक। लेकिन इट्स नॉट अबाउट 5 मिनट सिर्फ योग करना है, दैट वाज नॉट द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक जिसमें पावर है, वो पावर ये है कि एक थॉट लेनी है, एक थॉट लेनी है और एक थॉट को 5 मिनट्स तक लेकर जाना है। Now this is an exercise. This is an exercise. Suppose हम फिजिकल करते हैं कि हमें ट्रेनर कहता है बेंड करो, ठीक है, नाउ बेंड, तो फर्स्ट डे तो हम बेंड ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना स्टिफ होता है, बॉडी इधर तक जाता है और नीचे भी नहीं जा पाता है। ट्रेनर कहता है पैरों तक जाकर टच करो, बेंड करो, we do only this much and it pains. So let's check. भगवान ने कहा 5 मिनट्स एक थॉट में सेट हो जाओ, क्या हम हो पाते हैं? तो इनिशियली हम नहीं हो पाएंगे, मेजोरिटी नहीं हो पाएंगे कि 5 मिनट्स वन थॉट
and hold on to that one thought and the experience of that one thought for 5 minutes. हम में से मेजोरिटी नहीं कर पा रहे होंगे अभी ये, लेकिन हमें स्टार्ट कैसे करना है? 1 second, then it will go to 2 seconds, then it will go to 3 seconds. It's not going to go to 5 minutes directly on day 1. तो अगर हम कोशिश करें कि हम 5 minutes करें और हमारा हो नहीं, और फिर हम सोचे क्या मुझसे तो होता नहीं है, और फिर हम छोड़ दे, then we are not going to pass the exam. He's very clear. टीचर ने बहुत क्लियर कर दिया कि ये वाला सब्जेक्ट अगर नहीं वर्क करेंगे तो लास्ट समय में आप अपनी स्थिति को स्थिर नहीं रख पाएंगे। लास्ट समय में हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि भले दुनिया को लगता है कोविड इतना बड़ा आया है सृष्टि पर, लेकिन भगवान कहता है अच्छा कोविड, हाँ ये तो अभी छोटा है, ये अभी छोटा है। So we say what a big exam paper for the world, and God says oh ये तो अभी छोटा है, and वो ऐसे प्यार से बोल देता है। हम कहते हैं हाँ हाँ वो परमात्मा है ना, तो वो इस तरह से बोल, परमात्मा को हमारे आगे के एग्जाम पेपर पता है कि कौन से आने वाले हैं। So Baba says COVID तो is just one scene, it's gone, but you have to prepare for the bigger scenes. And इसका मतलब इससे कई गुना, जो कि बाबा हमें शुरू से बोलते हैं, और कुछ अनसर्टन बातें आएंगी है, और उस अनसर्टन बातों में हम पर भी असर पड़ सकता है, हमारी फैमिली पर भी असर पड़ सकता है, हमारे वर्क पर असर पड़ सकता है, पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है। और उस समय एक संकल्प लेना है और स्थिर रह जाओ। जब हम अभी नहीं कर पा रहे नॉर्मल कंडीशन के अंदर, जब सब ठीक है हमारे साथ, हम उस समय पर 5 minutes एक पोजीशन में सेट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर इट वोंट बी पॉसिबल। सो बाबा सेज कि आप नहीं क्रॉस कर पाएंगे अंतिम सीन को। मतलब टीचर कहता है आप नहीं क्रॉस कर पाएंगे फाइनल एग्जाम को। वेरी क्लियर। अभी तो सब इंस्ट्रक्शंस को पकड़ना पड़ेगा ना फिर, कि बाबा कह रहा है आप फाइनल एग्जाम को नहीं क्रॉस कर पाएंगे अगर आपने ये वाली टेक्निक को मास्टर नहीं किया। तो अब हमें इस साल बाकी सब होमवर्क है ना, जो वो सारे इस होमवर्क के अंदर आ जाएंगे। बाकी सब संस्कार जो चेंज करने हैं ना, वो इस होमवर्क में आ जाएंगे। बाकी सारी सृष्टि की जो सेवा करनी है ना वाइब्रेशन से, वो इस होमवर्क में आ जाएगी कि एक संकल्प को पकड़ना है, उसको होल्ड करना है, और रोज के उसके टाइमिंग को क्या करना है, बढ़ाना है। तो सपोज हम बेंड कर रहे हैं, तो पहले दिन तो बस हम बेंड करेंगे और तो ही दर्द हो जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे, विच इज फाइन, विच इज ओके। हमने बेंड करना शुरू तो किया, तो फर्स्ट डे इट विल बी 1 second, और सेकेंड डे अगर हमने कहा नहीं बहुत पेनफुल है, हमसे नहीं होता, तो नेक्स्ट टाइम वो होगा नहीं। सो इवन इफ इट इज पेनिंग मतलब मेरे से बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, मेरे से 1 second भी नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे अंदर कोई ना कोई और दूसरी थॉट आ गई, वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप। हमें गिव अप नहीं करना है अपने ऊपर, हमें वो 1 second को दिन में बार बार प्रैक्टिस करना है। हर घंटे के बाद तो करना ही है जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है और हम रुकते हैं, लेकिन सारा दिन में भी उस 1 घंटे को उस 1 second को बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। 2-3 दिन के अंदर वो 1 second नहीं रहेगा। रोज बेंड करें, 3-4 दिन के अंदर बेंडिंग की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और जितनी देर हम वहां होल्ड कर सकते हैं वो भी बढ़ जाएगा। तो पहले दिन तो हम 1 second करेंगे और वापस आ जाएंगे, थोड़े दिन बाद हम 10 seconds करेंगे, फिर उसके थोड़े दिन बाद हम बेंड करेंगे, ट्रेनर बोलेगा यू डोंट मूव, आई विल टेल यू व्हेन टू मूव अप, एंड ट्रेनर काउंट करेगा 1 2 3, हम बोलेंगे बस, बोलेगा नहीं रुको, एंड वो हमें ट्रेन कर रहे हैं। तो हम 10 से 20 seconds, 20 seconds से 1 minute, 1 minute से 5 minutes, हम वो 10 minutes तक जरूर पहुंचेंगे, दैट इज सर्टन। भगवान हमें कोई ऐसा होमवर्क देता ही नहीं है जो हम नहीं कर सकते। वो देते ही नहीं है हमें ऐसा कोई होमवर्क जो हम नहीं कर सकते। नहीं, हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हम उसको करते ही नहीं है। दैट्स द ओनली डे। अगर हम उसको करें ही नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको करें तो ये बहुत बहुत ईजी है। लेकिन ये इमीडिएटली नहीं होगा, ये इमीडिएटली नहीं होगा। इसको चाहिए होगी एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस
हो सकता है हमें ये पूरा साल लगे 10 मिनट्स तक पहुंचने के लिए, हो सकता है हम इस 1 साल में 5 मिनट्स तक ही पहुंचे, हो सकता है हम 1 साल में 5 मिनट्स तक भी न पहुंचे, बट दैट्स फाइन, वो फर्क नहीं पड़ता है। एज लॉन्ग एज हमने करना शुरू कर दिया, और करने शुरू करने से हम पहुंचने ही वाले हैं। तो इस साल के लिए इस होमवर्क को पकड़ लेते हैं, इस होमवर्क को पकड़ लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं मेडिटेशन में, हम बहुत फास्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं। अभी मैं शरीर हूँ, शरीर रिलैक्स्ड है, फिर भ्रिकुटी के बीच से आत्मा है, अभी मैं आत्मा उड़ गई, इट्स लाइक फास्ट। इट्स नॉट लाइक दैट, मेडिटेशन नॉट लाइक दिस। क्योंकि बाबा हमें क्या कहते हैं, संकल्प करो, वो नहीं है मेडिटेशन। बाबा कहते हैं उस संकल्प के स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्थित हो जाओ, मतलब sit in that one position now. Don't keep jumping here, there, moving from here and there in your mind. Even if it is with Baba, but we are jumping. बाबा अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं सूक्ष्म वतन, अभी मैं परम धाम, अभी मैं सत्युग, अभी मैं वापस सृष्टि पर। इट गोज सो फास्ट, सो फास्ट। तो जब हम फास्ट थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो हमारे कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड पे होती है। तो हम सारा दिन भी बहुत थॉट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन वो वर्क रिलेटेड होती हैं, घर रिलेटेड होती हैं। और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हम आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, परम धाम, हम वो वाली थॉट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारी स्पीड फिर भी काफी फास्ट है, बहुत फास्ट है। तो जब हमारी थॉट्स थोड़ी फास्ट होती हैं, दे आर ओनली ऑन द टॉप लेयर ऑफ द माइंड। तो बीज किधर है, बीज सिर्फ ऊपर ऊपर है, जमीन के ऊपर। बीज को अंदर जाने के लिए, ये बीज अंदर नहीं जब तक जाएगा, तो इसका रिजल्ट वृक्ष नहीं निकलेगा, वृक्ष नहीं निकलेगा। हम ऊपर 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 जमीन पर बीज डालते जा रहे हैं, बीज डालते जा रहे हैं, और फिर हम कहते हैं मेरा संस्कार अभी तक क्यों नहीं चेंज हुआ, मेरे को गुस्सा अभी तक क्यों आता है, मुझे क्यों अभी तक कभी कभी चिंता होती है, मुझे क्यों अभी अभी तक कभी कभी तक डर लगता है। इतने सालों से योग कर रहे हैं, इतने सालों से पवित्रता है, इतने सालों से मुरली सुनते हैं, अभी तक क्यों चेंज नहीं आता है, क्यों चेंज नहीं आता है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे, आपने तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया कि आपने फर्स्ट सब्जेक्ट जो है पहला विकार, काम विकार को आपने इतना इजीली क्रॉस कर दिया, नेक्स्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि काम विकार इज मोर अ फिजिकल थिंग, फिजिकल चीजें करना इजी होता है, वो इजी होता है। खान पान को चेंज करना इजी होता है, क्योंकि इट इज अ फिजिकल थिंग। तो हाँ बाबा, आज से हमने ये खाना छोड़ दिया, इट इज सो इजी। ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन, लेकिन इजी होता है क्योंकि वो फिजिकल चीज है। तो हम कहते बाबा आज से ये खत्म, आज से हम ये नहीं खाएंगे, एंड फॉर एवर। हमें कितने भी साल हो गए हैं, वी नेवर गो बैक टू दैट। कितना इजी है संस्कार चेंज करना। लेकिन जब बात आती है सूक्ष्म संस्कारों की, कि गुस्सा, डर, चिंता, निंदा, ये सारी चीजें सूक्ष्म है। फॉर दिस the sankalp has to go into the subconscious. It just can't be here. I just can't say मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं and I become शांत. It doesn't happen. कई बार हम में से बहुतों ने एक्सपीरियंस किया होगा, मेडिटेशन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई एम अ पीसफुल सोल, पर सडनली कोई वॉक इन कर गया रूम में, या किसी का फोन बज गया, या किसी ने रेड लाइट ऑफ करके दूसरी लाइट ऑन कर दी, तभी उसके साथ इरिटेट होकर बात कर लेते हैं। And we need to ask ourselves, what was I doing? I was churning कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और मैंने गुस्सा भले माइल्डली किया हो, लेकिन गुस्सा तो गुस्सा ही है ना। इवन अगर मुख से ना किया हो, मन में इरिटेट हुए, तो वो भी तो गुस्सा ही है कि ये क्या, इसको समझ में नहीं आता, मैं मेडिटेशन कर रहे हो, इस टाइम पर आ गए बीच में, इस टाइम पर फोन पर बात कर रहे हैं, तो वो भी तो गुस्सा ही है। इवन इफ इट्स इन द माइंड, आई वॉज जस्ट सेइंग कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अगर मैं उस समय वो संकल्प क्रिएट करते हुए भी इरिटेट हो सकती हूँ, मैं सारा दिन कैसे करूंगी, मैं इसको सारा दिन कैसे करूंगी, इज अ क्वेश्चन मार्क। बिकॉज वो संकल्प इज ऑन द कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड। संकल्प स्वरूप बन जाए, वो थॉट नहीं रहे सिर्फ, वो एक हमारा स्वरूप बन जाए, उसके लिए संकल्प को सबकॉन्शियस में जाना पड़ता है। कॉन्शियस लेयर पे तो नहीं होगा वो, इट हैज टू गो इनटू द सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस पे वो कब जाएगा,
जब हम एक संकल्प लेंगे और उसको पकड़ के रखेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा एक स्वरूप, एक संकल्प लो, एक स्व मान लो और उसको पकड़ के रखो, उसको पकड़ के रखो। अगर मैं सिर्फ कभी ऐसा बेंड हुआ 1 सेकंड और ठीक हो जाऊं, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ने वाली है। बट अगर बेंड हो एंड उसमें रुको और फिर पैरों तक टच करो, तब इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। If I just bend and I say I'm flexible, no, it's not flexible. But I have to bend and I have to stay in that position for some time and then I will say my body is flexible. The same यहाँ हो रहा है। तो वो होमवर्क को बहुत बहुत सीरियसली, ये होमवर्क में सारे होमवर्क समाये हुए हैं। तो जितने भी आज आपने 1 जनवरी को लिखे होंगे अपनी रेजोल्यूशन के, हम ये संस्कार चेंज करेंगे, हम ये करेंगे, बहुत बढ़िया है। लेकिन वो सारे इस प्रैक्टिस से चेंज हो जाएंगे और उससे ज्यादा भी चेंज हो जाएंगे अगर हम वो आत्म अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियस स्थिति की प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। यज्ञ में पहले 14 साल क्या हुआ आपको पता है? शुरू शुरू में तो दादियों को पता नहीं था कि परमात्मा निराकार, हमें परम धाम जाना है, सूक्ष्म वतन तो नहीं था। तो वो क्या करते थे इतनी देर योग में बैठकर? फिर अगर उनको सूक्ष्म वतन तो नहीं था, परम धाम का शुरू में पता नहीं था, तो वो करते क्या थे योग में बैठकर? फिर isn't it important what were they doing in meditation? They were doing only one thing, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। They were doing only one thing. ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ कौन सा अभ्यास किया? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। लिखा हर जगह मैं आत्मा हूं। एक बार मैं आत्मा हूं, ये कॉन्शियसनेस स्थित होने लगती है, फिर परम धाम गए और बाबा से कनेक्ट हुआ, बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो हम जाते हैं एक थॉट में, तीसरे चौथी थॉट में हम फिर नीचे आ जाते हैं, मतलब फिर इधर की कोई बात याद आ जाती है, फिर हम जाते हैं, फिर हम 5 थॉट्स के बाद फिर नीचे आ जाते हैं। तो हमारा अमृत वेला कई बार इसी करने में बीत जाता है। हम जाते हैं, फिर इधर की कोई बात हमें पकड़ लेती है, क्योंकि हम एक संकल्प में ही चले जाते हैं ऊपर, विदाउट सेटिंग आवरसेल्फ इन दैट पोजिशन। मैं आत्मा हूं। व्हाट इज द मीनिंग मैं आत्मा हूं? विच मीन्स आई एम रेजिंग माई वाइब्रेशन अबव दिस वर्ल्ड। इस दुनिया की जो वाइब्रेशन है वो शरीर और शरीर से रिलेटेड सारी बातों की है। लोग, मेरे रिश्ते, मेरा काम, सेवा, ये वाइब्रेशन है चारों तरफ। अब हम इस वाइब्रेशन में हैं, हम खुद भी हैं, हमारे आसपास की हवा भी उसी वाइब्रेशन की है। और अगर हम एक थॉट क्रिएट करें, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो क्या हम ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे 2 थॉट्स के अंदर? नहीं होता। और जब तक हम यहां अपनी वाइब्रेशन में शिफ्ट नहीं होंगे, हम परम धाम, द हाईएस्ट वाइब्रेशन, परमात्मा, द हाईएस्ट वाइब्रेशन, वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं होता है। इसीलिए हम जाते हैं, लेकिन फिर हमें कुछ याद आ जाता है, आज ऑफिस में ये करना है। इतनी, अगर आप एक दिन स्कैन करें कि जब हम योग में बैठे हैं, हमें इतनी ट्रिवियल बातें खींचती हैं, मतलब उन बातों का कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं होता है, लेकिन वो बातें आती है माइंड के ऊपर। एंड वी लाइक, सोचना भी है तो कोई बड़ी बात सोचो, ये कोई छोटी सी बात कोई सोचने की है इस टाइम पे, लेकिन वो थॉट आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हम उसी वाइब्रेशन में बैठकर बोल रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। तो हवा में जो दूसरी थॉट्स हैं, परिवार वालों की थॉट्स हैं, मेरे माइंड की अपनी कल की क्रिएटेड थॉट्स थी, वो सारी वापस आएंगे, बिकॉज आई एम ऑन दैट फ्लोर, आई हैव नॉट गॉन हायर इन द टावर, मुझे ऊपर जाना होगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, मैं आत्मा हूं, एक स्वमान लेकर कि मैं कौन सी आत्मा हूं, वो लेकर उसी को पकड़ना है, उसी को पकड़ना है। नेक्स्ट नहीं, मैं शक्तिशाली भी हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान भी हूं, मैं पवित्र भी हूं, नहीं, ये बीज सिर्फ ऊपर गिर रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है। तो इसीलिए ये होमवर्क को पक्का करना है। और वो जो बाबा ने कहा है कि हर घंटे के बाद 5 मिनट्स, अब अपने आप से पूछें, एक दिन तो ऑलरेडी बीत चुका है मुरली सुने, एक दिन से ज्यादा ही बीत चुका है मुरली सुने। किस किसने इस एक दिन में 5 मिनट्स किया? भले लगा नहीं ठीक से वो स्थिति, लेकिन रुके,
5 मिनट के लिए. We've not done it. And अब important है, अगर मुझ आत्मा ने भगवान की बात सुनने के बाद पहले दिन ही नहीं किया है, तो थोड़े दिन के बाद तो वो याद भी नहीं रहेगा कि वो बोला था, वो याद नहीं रहेगा कि वो कहा था. थोड़े दिन के बाद नेक्स्ट मुरली आएगी, हम नेक्स्ट मुरली रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट मुरली आ जाएगी, हम नेक्स्ट मुरली रिवाइज करेंगे, एंड दैट विल बी ओवर. बट वो वर्तमान समय की फाउंडेशन है. तो अब हमें उस स्थिति में स्थित होना है जिसमें दादियां 14 साल बाबा और मम्मा के साथ जो उन्होंने प्रैक्टिस किया. जब मैं उस दिन देख रही थी ना वीडियो, मतलब बैठकर कि इतने सारे लोग हॉल में बैठे थे और हम सब भी अपने अपने स्थान पर बैठे थे. इतने सारे मतलब उस दिन की रिकॉर्डिंग में जो उतने सारे उस टाइम पर थे हॉल में, और फिर इतने सारे अभी भी बैठे थे और हम सब भी बैठे थे. एंड आई जस्ट हैड अ थॉट, ऐसे भगवान बोलता है 5 मिनट एक संकल्प में स्थित हो जाओ. आई हैव अ डाउट हम में से कोई भी स्थित हो सकता है, जितने भी हम यहाँ बैठे हुए हैं. तो फिर हु आर द वंस जो ये 5 मिनट कर सकते हैं एक संकल्प के अंदर? Then I thought it's only those who did the 14 years तपस्या. Because उन्होंने 14 साल क्या किया, अपने आप को सारी चीजों से, दुनिया से डिस्कनेक्ट करके तपस्या की है. तपस्या, हम योग करते हैं सुबह थोड़ी देर के लिए, हम तपस्या नहीं करते हैं. तो उन्होंने वो तपस्या की 14 साल. उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये नहीं हुआ सिर्फ कि उनकी वाइब्रेशन बहुत नेचुरल आत्मा अभिमानी हुई. उनका रिजल्ट ये हुआ कि उन छोटे से ग्रुप की, वो बहुत छोटा सा ग्रुप है 300 का, उस 300 के 14 साल की तपस्या के ऊपर खड़ा है इस यज्ञ का पूरा वृक्ष. पूरा वृक्ष. आज हम बहुत इजीली कहते हैं, ओ हमारे 140 कंट्रीज में इतने सेंटर हैं, ओ हमारे इतने सारे परिवार हैं. ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे कि इतने सारे लोग, इतने सारे सेंटर्स, इतने सारे देशों में ये कैसे क्रिएट हुए? जो ये दिखता है हमें सेवा, दिस इज ओनली द ट्री. दिस इज द ट्री. वो ट्री बहुत इजीली उग गई, उस पे इतने सारे फ्रूट्स आ गए, इतने सारे फ्लावर्स क्रिएट हो गए. तो आज हम कहते हैं हमारे लाखों परिवार है, लाखों बाबा के बच्चे हैं. दीज आर द फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स ऑफ दैट ट्री. These are the fruits and the flowers. इतने सारे सेंटर्स हैं, इतनी सारी समर्पित बहनें हैं. हमें सिर्फ ये दिखता है because this is the tree. इस ट्री का फाउंडेशन, इस ट्री का रूट एंड सीड थी वो 14 साल की तपस्या. वो 14 साल की तपस्या. तो अब समय आया है कि ये ट्री सिर्फ लाखों की ना हो. अब कौन सा समय आया है? ये ट्री कहाँ तक पहुंचनी है? तो बाबा ने कहा अब इस ट्री पर, इस सृष्टि की हर आत्मा को, ये बाबा ने हमें शुरू से कहा है, सृष्टि की हर आत्मा कहे मेरा बाबा. सिंपल. इस लक्ष्य को सामने लेकर आओ. अब अगर हम सोचे कि बाबा अभी तो मेरे घर के लोग भी नहीं बोलते मेरा बाबा, आप बोलते हो पूरी सृष्टि के लोग बोलेंगे मेरा बाबा, तो ना लॉजिकली थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट साउंड करता है. अभी तो जिनको मैं इतने सालों से अपने घर में बोल रही हूँ, वो भी अभी तक क्या बोलते हैं? तुम्हारा बाबा. तुम्हारा बाबा को पूछो क्या करना है, तुम्हारे बाबा ऐसा सिखाता है. तो वो भी अभी तक तुम्हारा बाबा बोलते हैं, मेरा बाबा नहीं बोलते. एंड बाबा इससे पूरी सृष्टि की हर आत्मा बोलेगी मेरा बाबा. तो फर्स्ट तो ये लॉजिकली अंदर जाता ही नहीं है अगर हम लॉजिकल माइंड से सोचते हैं. लेकिन फिर हम जाएं 1937 में, जब बाबा ने उन दादियों को, जो छोटी छोटी बहनें थी, उनको बोला था, आपको पता है बच्चे, आप पूरे विश्व में फैल जाएंगे, आपके सेंटर तो पूरे विश्व में होंगे. एंड व्हाट दे मस्ट हैव थॉट दैट टाइम. अभी तो हमारे घर के लोगों ने देखो हमें स्वीकार नहीं किया, कहाँ कहाँ तो हम लड़ के भाग भाग के तो आए हुए हैं, और ये पूरे विश्व में कौन जाने वाला है? Why will they agree? What will happen? But everything happened, na? Just have to go back to all the murlis and see कि हर बात जो भगवान ने बोली थी, जिस समय बोली होगी, उस समय वो भी उतनी लॉजिकल साउंड नहीं की होगी. लॉजिकल मतलब मुश्किल साउंड, कैसे होगा, हम कहाँ जाएंगे. लेकिन वो हर महावाक्य मैनिफेस्ट हो चुका है, क्योंकि वो भगवान की बोली हुई बात है ना.
वो हर बात सच निकली है, हर बात सच निकली है। जब वो हर बात सच निकली है, इसका मतलब जितनी थोड़ी सी बातें रही हुई हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो हर बात भी सच होनी ही है, होनी ही है। There is no, the mind cannot be allowed to create even a single point of doubt now. हमारे सबके पास तो इजी है क्योंकि हमने इतनी बातें सच होती देखी, तो जब एक प्रूफ मिल जाए तो ट्रस्ट करना बातों पर थोड़ा सा और इजी हो जाता है। उनके बारे में सोचो, वो जो फर्स्ट कोर ग्रुप था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, उन्होंने कोई एविडेंस नहीं देखी थी इस ज्ञान की बात की, लेकिन उन्होंने तो घर भी छोड़ दिया अपना, सब कुछ छोड़ के सिर्फ तपस्या किया। उस तपस्या पे, वो तपस्या में क्या था? अनकंडीशनल फेथ। इसीलिए बाबा कहते हैं निश्चय भी बच्चे नंबरवार है, नंबरवार है। तो जब तक मेरा लॉजिकल माइंड कहता है कैसे सारी सृष्टि की आत्माएं बोलेंगी, तो उतनी देर मेरा भगवान के महावाक्य पर 100% निश्चय नहीं है, बिकॉज आई एम डाउटिंग इट, आई एम फीलिंग दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये मेरा डाउट है, तो मुझे पहले अपने डाउट पर वर्क करना पड़ता है। एंड देन आई टेल माई लॉजिकल माइंड, ये बाबा की ये बात भी सच, ये बात भी सच, ये बात भी सच, तो ये बात उस टाइम कितनी मुश्किल होगी कि बच्चे विदेश जाओ, ये चित्र लेकर जाओ, ये चित्र लगेंगे, वहां के लोग भी आएंगे, चल भारतवासी आएंगे तो आएंगे, वहां के लोग भी, हाउ डिफिकल्ट दिस मस्ट हैव बीन दैट टाइम टू बिलीव, हाउ डिफिकल्ट। लेकिन हर बात हुई है। तो अब लास्ट कुछ महावाक्यों को ले लेते हैं जिन्होंने भी अब मैनिफेस्ट होना है और उनके सिद्ध होने का समय आ चुका है, आ चुका है। तो बाबा ने कहा सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। पहले ये एक पॉइंट को अंडरलाइन कर लो कि सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा, और इस सीन को रोज सुबह देखना शुरू कर दो कि सृष्टि की सारी आत्माएं, हम ग्लोब को सकाश तो देते हैं, पर जो चीज सिद्ध होने वाली है उस दृश्य को भी देखना है, संकल्प को क्रिएट करना है और दृश्य को देखना है कि सृष्टि की हर आत्मा कहेगी मेरा बाबा। इसका मीनिंग क्या है कि वो सिर्फ कहेगी नहीं, ऐसे नहीं कहेगा कोई भी मेरा। अपनी जर्नी को देखो, हमने मेरा बाबा कब कहा, कब कहा? When did I the soul say मेरा बाबा? किसी को 1 हफ्ता लगा होगा, किसी को 1 महीना, किसी को 1 साल, किसी को बहुत साल लगते हैं मेरा बाबा कहने में। वो कब हुआ? जिस दिन मुझ आत्मा को एक्सपीरियंस हुआ, जिस दिन मुझ आत्मा ने कोर्स किया वो दिन नहीं होता मेरा बाबा कहने का। जिस दिन मुझ आत्मा को ज्ञान समझा वो दिन भी नहीं होता है। जिस दिन मुझ आत्मा ने एक्सपीरियंस किया उस दिन अपने आप मन ने कहा मेरा बाबा। सो नाउ वी कैन नॉट ओनली बी हैप्पी सेइंग ओ बहुत सारे बच्चे को अब परिचय मिल गया है, बहुत सारे लोगों तक बाबा का संदेश पहुंच रहा है। संदेश पहुंचने से मेरा बाबा नहीं कहेंगे, वो संदेश पहुंचने से मेरा बाबा नहीं कहेंगे, वो एक्सपीरियंस करने से मेरा बाबा कहेंगे, एक्सपीरियंस करने से। तो एक्सपीरियंस यहां से नहीं हो सकता मुख से, एक्सपीरियंस होता है वाइब्रेशन से। अब जस्ट विजुअलाइज, अगर हम सपोज 10 लाख है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर अभी, बिकॉज अभी तो इतने बढ़ गए हैं इसकी कोई काउंट भी नहीं है अभी, बट सपोज हम 10 लाख हैं और 10 लाख लोग एक संकल्प लेते हैं, एक संकल्प लेते हैं, मैं शिव शक्ति, परमात्मा और मैं, बाबा और मैं शिव शक्ति, और उस संकल्प में स्थित हो जाते हैं और वो सारे वाइब्रेशंस पूरे ग्लोब पर ऑटोमेटिकली रेडिएट कर रहे हैं। हमें उसको रेडिएट करना नहीं है, हमें सिर्फ उस स्थिति में स्थित होना है, एंड दैट वाइब्रेशन इज रीचिंग, इट्स रीचिंग। एंड जैसे जैसे वो वाइब्रेशन पूरी सृष्टि पर पहुंच रहा है, हमें मालूम ही नहीं है कौन कहाँ किस कोने में वो वाइब्रेशन को कैच कर लेगा। जैसे कोई एक मैसेज बनाता है और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर देता है, वो सर्कुलेट करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको सिर्फ 5-10 लोगों तक ही उसको भेजना है, या उसको तो कई बार भेजना भी नहीं है, बस रिलीज करना है। हम लोग सब क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसको अपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम सिर्फ रिलीज करते हैं, दैट्स द वर्ड, हम सिर्फ रिलीज करते हैं।
हम फॉरवर्ड भी नहीं करते किसी को, हम जस्ट रिलीज करते हैं। अब जैसे हमने रिलीज किया, किसी एक ने उसको देखा, मतलब उसने कैच किया, उसने और क्रिएट किया, उसने दूसरों तक भेजा, एंड तब धीरे धीरे वो लाखों तक, करोड़ों तक चली जाती है चीज। हमने क्या किया लेकिन उसके लिए? हमने सिर्फ क्रिएट किया और रिलीज किया, क्रिएट किया, रिलीज किया। वो कहाँ 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 पहुंच जाता है। और फिर हमें सडनली कोई बोलेगा, ओ हम अमेरिका में हैं, हमने ये वीडियो देखा, ओ हम अफ्रीका में हैं, हमने ये वीडियो देखा। जब हम वो वीडियोस क्रिएट करते हैं, हम कभी सोचते नहीं हैं कि वो यूएसए में कोई देखेगा और ऑस्ट्रेलिया में कोई देखेगा। नहीं, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सब लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, पोस्ट कर देते हैं। वो कहीं भी कोई भी देख लेगा। अगर साइंस ये कर सकती है, अगर साइंस ये कर सकती है, तो वाइब्रेशन, एनर्जी और साइलेंस क्या कर सकता है? कितनी पावर है। तो हमें सिर्फ उस संकल्प को क्रिएट करके उसमें स्थित होना है और उसकी वाइब्रेशन रिलीज हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। साइंस की चीजों को कैच करने के लिए तो फिर भी ऑन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उस ऐप तक जाना पड़ता है। तो कोई जाता है, कोई नहीं जाता है, लेकिन वाइब्रेशंस तो अपने आप पहुंच रही है सब जगह, अपने आप पहुंच रही है सब जगह। तो जब हम ये होमवर्क करेंगे एक संकल्प में स्थित होने का, हमारी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई हो जाएगी। अभी जिस तरह से हमने योग किया है, उससे हमारे संस्कार बदल रहे हैं, हमारी स्थिति अच्छी हो रही है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंची है, हाईएस्ट तक नहीं पहुंची है। करोड़ों लोगों के कलयुगी संस्कारों के ऊपर थोड़े से लाखों लोगों के संस्कारों की वाइब्रेशन ओवर पावर करे और कलयुगी सृष्टि सत्युग बन जाए, उसके लिए वो 10 लाख जो आत्माएं हैं, उनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होनी पड़ेगी, अभी से काफी हायर। तो जब हम ये करेंगे, वो वाइब्रेशन रिलीज हो जाएगी इनटू द यूनिवर्स, इट विल जस्ट गो, एंड वो इतनी फास्ट फैलेगी कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया के कौन से कोने में कौन सी आत्मा बैठकर मेरा बाबा की वाइब्रेशन कैच करेगी। कैसे वो मेरा बाबा की वाइब्रेशन कैच करेगी? क्योंकि हमने अपने स्थान पर बैठकर थॉट क्रिएट किया होगा, मेरा बाबा। That's it. We just have to radiate this onto the universe at a higher vibrational level. And somebody will catch that thought. They might not even understand it initially. कि इसका meaning क्या है? They will just catch and they will say, Mera Baba. They'll not know what it means, but they will feel very good because Mera Baba is not a word. It is a vibration. मेरा बाबा एक शब्द नहीं है। हम कभी कभी बहुत परेशान होते हैं तो भी कहते हैं बाबा। बाबा कोई परेशानी की स्थिति में बोली हुई चीज नहीं होती है। बाबा एक एनर्जी है, बाबा एक वर्ड नहीं है, बाबा एक वर्ड नहीं है, बाबा एक एनर्जी है। पहले भी हम कहते थे हे भगवान ये मुश्किल क्यों आई, हे भगवान ये ठीक कर दो। तो हम लो रहते थे और भगवान को याद करते थे और बोलते थे भगवान कुछ मदद नहीं करता है। फिर बाबा ने कहा आप मेरा बाबा बोलो और देखो बाबा आ जाएगा। तो हमने वही वाला तरीका अपनाया। हम परेशान होते हैं, उदास होते, कहते बाबा आप प्लीज आ जाओ ना, प्लीज ये ठीक कर दो ना। कुछ ठीक होता ही नहीं है वहां पे। तो हम कहते क्या बाबा ने बोला था मेरा बाबा बोलो तो सब ठीक हो जाएगा, बट ये हो तो नहीं रहा। क्योंकि हम कहाँ बैठकर मेरा बाबा बोल रहे हैं, हम लोअर वाइब्रेशन पर बैठकर बोल रहे हैं। मेरा बाबा बोलो इज नॉट हियर। Mera Baba Bolo means go into that sthiti of Mera Baba. And when we go to that vibration, it will just radiate on the planet. एक और चीज बाबा ने मुरली में बार बार कही है। आपको लगता है कि ये जिस स्पीड पे अभी हम चल रहे हैं, सेवा की स्पीड पर, इस स्पीड पर चलते हुए तो बहुत टाइम लगेगा सृष्टि की हर आत्मा तक पहुंचने के लिए। साइंस ने हमें करके दिखाया कि पहले हमारा एक लेटर कितने दिन में कहाँ तक पहुंचता था, और फिर साइंस ने कुछ एक सालों में ऐसे साधन बनाए कि एक मैसेज पोस्ट करो और पूरी दुनिया में फैल जाता है। कितनी देर में? 1 सेकेंड में। अगर हम उस समय लॉजिकल माइंड से सोचते कि अगर एक लेटर 1 हफ्ते में पहुंचता है तो इधर तक पहुंचने में कि एक मैसेज 1 सेकेंड से कम में पहुंचे, तो पता नहीं हमें कितनी सेंचुरीज लगेंगी ये करने के लिए। साइंस ने कुछ सालों में उसको क्रिएट कर दिया। सो बाबा इज सेइंग डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू गो एट दिस पेस, कि हाँ धीरे धीरे अभी हम 10 लाख हैं फिर हम इतने,
ऐसा नहीं होगा. It will just go like this, very fast, very fast. But ये very fast क्यों होगा? क्योंकि हम very fast पुरुषार्थ करेंगे, अपना पुरुषार्थ. हम वेरी फास्ट अपनी स्थिति को ऐसे लेकर आएंगे तो सेवा तो पता ही नहीं चलेगा कैसे पहुंच गया उन तक. तो बाबा ने एक मुरली में कहा है कि आपकी स्थिति, आपका चेहरा ऐसा बन जाएगा कि वो आपको देखेंगे और आप उनको बाबा की वाइब्रेशन मिल जाएगी. अब इसीलिए द्वापर युग से देवी देवताओं को भगवान मानते हैं. हम उनको बोलते हैं निराकार परमात्मा, कहते नहीं, मेरे लिए यही है मेरा भगवान. क्यों द्वापर युग से आत्माओं के अंदर ये छपा हुआ है कि देवी देवता ही मेरे लिए भगवान है? क्योंकि संगम युग के एंड पर उन सभी आत्माओं ने देवी देवताओं के थ्रू ही भगवान को अनुभव किया है. इट्स वेरी सिंपल. उन्होंने देवी देवताओं के थ्रू ही भगवान को अनुभव किया था और उनके अंदर वो रिकॉर्डेड है कि मैंने इन देवी देवताओं के थ्रू भगवान को अनुभव किया, मतलब यही भगवान है. द्वापर युग आता है और उनके अंदर वो वाली मेमोरी जो उस टाइम आत्माएं नीचे आएंगी, वो मेमोरी उनके अंदर इमर्ज होगी और वो देवी देवताओं के ही मंदिर बनाएंगे, देवी देवताओं को ही याद करेंगे. तो संगम युग के एंड पर, विच मीन्स ये ट्रांजिशन पीरियड के अंदर, वो सारे देवी देवताएं रेडी होने वाले हैं जिनके थ्रू भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान का वाइब्रेशन मिलेगा. और जब साक्षात्कार होता है, कोई लॉजिक उसके बाद नहीं चाहिए होती है, आत्मा इमीडिएटली कहती है मेरा बाबा, इमीडिएट. सो लेट्स पुट असाइड लॉजिक, लेट्स सी व्हाट बाबा इज टीचिंग, होल्ड इट एंड देन मैनिफेस्ट इट, मेक इट हैपन. तो बाबा ने कहा है सृष्टि की हर आत्मा कहेगी बाबा मेरा बाबा. बाबा ने कहा है सृष्टि की हर आत्मा पहचान लेगी भगवान को परम धाम जाने से पहले. ये ईश्वरीय महावाक्य है. सृष्टि की हर आत्मा पहचान लेगी. और भगवान ने कहा है कि बच्चे, जैसे आदि में साक्षात्कार हुआ था, अंत में भी साक्षात्कार होगा. तो वो साक्षात्कार एक बिग स्केल पर होगा, बिग स्केल पर होगा. अब अपने आप से पूछें, क्या आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट? आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, कि मुझ आत्मा से अनेकों को बाबा का साक्षात्कार हो जाए. डू आई वॉन्ट टू बी? क्योंकि बचपन के दिन में तो हम ये कहते थे बाबा मुझे भी साक्षात्कार हो जाए, बाबा मुझे भी थोड़ा सा साक्षात्कार हो जाए. मुझे साक्षात्कार हो जाए वाली स्टेज नहीं, बाबा मेरे द्वारा लोगों को आपका साक्षात्कार हो जाए. नाउ दैट हैज टू बी द संकल्प, दैट हैज टू बी द संकल्प कि बाबा आप मुझे यूज करना, मेरे द्वारा लोगों को साक्षात्कार हो जाए. वो कब होगा? जब यहाँ हमारे मन चित्त पर बाबा का ज्ञान, बाबा की श्रीमत, उसके अलावा कोई और थॉट नहीं होगी. वी आर गोइंग टू रीच दैट स्टेज. हम सारा कुछ संभालेंगे, अपनी सारी जिम्मेवारियां बहुत प्यार से निभाएंगे, लेकिन सिर्फ ज्ञान के आधार से. हमारी हर थॉट ज्ञान की होगी. हमारे पुराने संस्कार खत्म, मर्ज हो जाएंगे. अब द्वापर युग में आना शुरू करेंगे वो फिर से, वो बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे अभी आधा कल्प के लिए. और ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशन इतनी हाई होगी कि जिनसे भी हम मिलेंगे उनको वो वाइब्रेशन टच होगी. और बाकी तो जिनसे हम नहीं मिल रहे हैं वो उधर तक भी पहुंचेगी. वो आत्मा इतनी ओवर पावर हो जाएगी उस एनर्जी से, उस वाइब्रेशन से, कि उसको अपने आप परमात्मा का अनुभव, परमात्मा का साक्षात्कार होगा. एक मुरली में बाबा ने कहा, साधारण रूप में माता घर पे होगी, वो पोछा लगा रही होगी, आप ऑफिस में काम कर रहे होंगे. दिस इज बाबाज वर्ड्स. एंड आसपास के लोगों को साक्षात्कार हो जाएगा कि हमारे घर में तो देवी है. तो ये जो साक्षात्कार होंगे, ये पहले वाले साक्षात्कार की तरह नहीं होंगे. पहले वाला जो साक्षात्कार था तब ज्ञान नहीं था, तो बाबा ने चित्र का साक्षात्कार कराया. देवी देवताओं का साक्षात्कार, निराकार का साक्षात्कार, सत्युग का चित्र. दैट मीन्स एवरीबडी कुड सी अ पिक्चर. अब इतने साल ज्ञान के बाद, इतना संस्कार परिवर्तन पे वर्क करने के बाद, अब जो साक्षात्कार होंगे वो चरित्र के साक्षात्कार होंगे. चरित्र,
चरित्र मीन्स वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस चेहरे और चलन से उनको साक्षात्कार हो जाएगा। जरूरी नहीं है उनको सत्युगी चित्र का साक्षात्कार हो, लेकिन चरित्र का साक्षात्कार हर एक को होगा, विच मीन्स वाइब्रेशन का साक्षात्कार होगा। एंड ये वाइब्रेशन का साक्षात्कार बाबा हर एक के द्वारा कराएगा, हर एक के द्वारा कराएगा। इसीलिए बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चे गली गली में सेंटर खुलेगा। पिक अप दिस लाइन, गली गली में सेंटर खुलेगा। कैसे कैसे गली गली में सेंटर खुलेगा? क्योंकि बाबा के बच्चे, हर गली में एक तो कोई रहता है ना, हर गली में एक बच्चा तो रहता है। तो आप अपनी सारी स्ट्रीट्स के नंबर्स चेक कर लीजिए, हर स्ट्रीट में एक 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 एक, और अभी निकल भी रहे हैं, और बाबा के बच्चे इतने सारे जूम के बच्चे पैदा हो रहे, एक 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 हर गली में हो जाएगा। जब हर गली में एक बच्चा होगा, एक चाहिए सिर्फ, हर गली में एक बच्चा होगा, वो एक बच्चा ही वो सेंटर है। सेंटर अर्थात सेंटर की एनर्जी, which means that divine energy, that high vibrational energy. So वो सब पकड़ना है। अब हम वो स्थिति में नहीं हो सकते कि हम कहें बाबा मेरे घर के वाइब्रेशन तो इतने बहुत पावरफुल नहीं है, मैं सेंटर आए बिना कैसे मेरा योग लगे। बाबा बोलेगा आप सेंटर है अब। नाउ नो ऑल दिस बेबी टॉक, बचपन वाली बातें नहीं करना अभी। अब आप सेंटर हैं, आप चलता फिरता सेंटर है। सेंटर मीन्स वाइब्रेशंस, vibrations, वो एनर्जी हम है। So we need to start talking to ourselves like that. We cannot talk like this now, क्या करें, मेरी स्थिति थोड़ी डाउन हुई, सेंटर नहीं गए, अभी तो शायद और 1-2 महीना पता नहीं जाए नहीं जाए क्या होता है। नो, बाबा आपने मुझे तैयार किया है, मैं आपका चलता फिरता सेंटर हूँ। परिवार वालों को ये नहीं बोलना चलो चलो बाबा के घर मेडिटेशन रूम में बैठो, अपने घर की एनर्जी को मेडिटेशन रूम बना दो। परिवार कहाँ जाएगा? उनको ये नहीं बोलना सेंटर चलो भोग खाओ, पता नहीं माने ना माने, लेकिन ऐसी स्थिति में भोग बनाओ कि वो बिल्कुल वही भोग होगा जो सेंटर पर बनता है। सो वी ऑल्सो हैव टू चेंज, नो, वी ऑल्सो हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। कैनॉट बी एट द सेम थिंग कि नहीं अभी ये नहीं हो रहा, अभी वो नहीं हो रहा। अभी हम मधुबन भी इस साल नहीं गए, बहुतों को लगेगा 2 साल हो गए हम मधुबन नहीं गए। कोई बात नहीं, बाबा ने कहा जब संकल्प करो तो आप मधुबन में हो, विच मीन्स वॉट, कि संकल्प जैसे क्रिएट किया तो जो मधुबन की वाइब्रेशन वो हमारी वाइब्रेशन स्थिति। फिर बाबा ने कहा जहां भी बच्चे बाबा को बहुत प्यार से बुलाते हैं बाबा वहां आ जाता है। बट हम कहते बाबा हम 2 साल से मधुबन नहीं आ पाए, हम बाबा मिलन सामने आकर नहीं कर पाए। बाबा बोलते बाबा मिलन तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो, आप कहीं भी बैठो आपका बाबा मिलन हो जाएगा। विच मीन्स वी हैव टू स्टॉप ऑल दीज नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस। चाहे मन में भी क्या आए बेचारा विक्टिम, मैं मधुबन नहीं गई, मैं सेंटर नहीं गई, तो मेरी स्थिति डाउन होना तो बहुत नेचुरल है ना। ये टाइम नहीं है ऐसी चीज करने का, ये टाइम नहीं है डाउन करने का। अगर स्थिति थोड़ी भी डाउन हुई तो सृष्टि की जो वाइब्रेशन है इस समय वो हम पर ओवर पावर हो जाएगी, और फिर हमें भी थोड़ी चिंता, हमें भी थोड़ा डर हो जाएगा। इस समय अपनी वाइब्रेशन को बहुत ऊपर लेकर जाना है, और हमें सृष्टि की वाइब्रेशन को ओवर पावर करना है, ना कि सृष्टि की वाइब्रेशन हम पे ओवर पावर हो। बी वेरी केयरफुल। और उसके लिए हमें अपनी हर थॉट को चेंज करना है। मधुबन कहाँ है? यहाँ है। सेंटर कहाँ है? यहाँ है। बाबा मिलन कहाँ है? यहाँ है। दैट्स इट। और यहाँ से अलग तो हम कभी होंगे ही नहीं। तो हम कह ही नहीं सकते हम यहाँ नहीं जा रहे, हम वहां नहीं जा रहे, हम वो नहीं कर रहे। और इसीलिए ये जो होमवर्क है जो कि बाबा ने ऑलमोस्ट 20 इयर्स पहले दिया था, नहीं 20 नहीं 2012, सो एग्जैक्टली 10 इयर्स पहले, 2010 या हाँ 10, सो 12 इयर्स पहले। तो जब वो दिया था हमने इस 12 इयर्स में वो होमवर्क नहीं किया, हमने नहीं किया। ये होमवर्क 2010 में मिल चुका था, हमने नहीं किया। तो फिर हम कहते हैं ना क्यों अब बाबा मिलन नहीं होता, तो पहले वाला ही होमवर्क नहीं किया, वो कितना नया होमवर्क देते जाएंगे, कितना नया होमवर्क देते हैं। तो अब वो मुरली को पकड़े और सिर्फ उसी होमवर्क को करें। जस्ट होल्ड ऑन टू दैट होमवर्क वेरी वेरी टाइट, वेरी वेरी टाइट। तो एक संकल्प लेना है, उस संकल्प को होल्ड करना है,
पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करना है। जब तक नहीं दिखता अगले संकल्प पर जाना नहीं है, अगले संकल्प पर जाना नहीं है। जब तक वो दिखेगा नहीं, धीरे धीरे बहुत थोड़ा दिखे, कोई और थॉट नहीं आए, तो हम उस स्वरूप में पहुंच गए हैं। स्ट्रेन भी नहीं करना है, प्रेशर नहीं डालना है। जब हम बेंड करते हैं तो ट्रेनर क्या बोलता है? जेंटली बेंड, डोंट पुश योरसेल्फ, डोंट फोर्स योरसेल्फ, जेंटली बेंड। तो हमें भी यहाँ पे जेंटली करना है, जेंटली करना है। और हम उस प्रैक्टिस करते करते, लेकिन ये प्रैक्टिस तभी होगी जो दिन में भी की जाए। अगर दिन में सारी दूसरी थॉट्स हो और फिर सवेरे जब हम अमृत वेले पे बैठे और तब हम इसको करें, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। क्योंकि माइंड कोई स्विच नहीं है कि बाकी 23 आवर्स वो अलग थॉट प्रोसेस पे चले और फिर सडनली अमृत वेले हम बैठे और वो अलग कॉन्शियसनेस पे शिफ्ट हो जाए। वो नहीं होता है। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे हर घंटे के बाद करो, हर घंटे के बाद करो। दैट इज द ओनली वे, दैट इज आवर प्रोटेक्शन, दैट इज आवर प्रोटेक्शन एंड दैट इज ओनली सेवा। उसी से वो वाइब्रेशन रेडिएट होगी। तो अव्यक्त मुरली को स्टडी रोज करें। अव्यक्त मास चल रहा है, आई एम श्योर हम सब 1969 की मुरलीज को रिवाइज कर रहे हैं। ऐसी मुरलीज हैं सारी। वैसे तो बाबा की हर मुरली थोड़े महीने बाद पढ़ो तो याद नहीं होती है कि ये वाली मुरली स्टडी की हुई है, क्योंकि वो स्टडी की चीज नहीं, वो स्वरूप बनने की चीज है। वो कहानी नहीं है जो याद हो जाएगी, वो स्वरूप बनने की चीज है। तो अगर 1969 की मुरलीज आप पहले स्टडी कर चुके हैं, फिर भी उसको फिर से स्टार्ट करो, फिर भी उसको फिर से स्टार्ट करो। और हर रोज एक अव्यक्त मुरली जरूर स्टडी होनी चाहिए। और जूम पर तो बहुत बेनिफिट हो गया है, बहुत सारे भाई बहने अव्यक्त मुरली ग्रुप्स को भी ज्वाइन करते हैं, स्टडी करते हैं, इकट्ठे ग्रुप बनाया है। अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं, इट्स वेरी गुड। नहीं है, इट जस्ट डजंट मैटर, अपने आप करना जरूरी है। लेकिन 2 पेज लो, उसको अच्छे से अंडरलाइन करो, क्या बोला है बाबा ने। और आप देखेंगे कि 1969-70 ये जो मुरलीज हैं, इसमें बाबा ने एक ही चीज पक्की कराई है, आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति, बीज रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति। एक मुरली में बाबा ने कहा, अगर आप बीज रूप स्थिति में रहेंगे तभी आप किसी और के अंदर पाप की पहचान और समय की पहचान का बीज डाल पाएंगे। ये 69 की मुरली में है। जब आप बीज रूप स्थिति में रहेंगे तभी आप किसी के अंदर बाप की पहचान, समय की पहचान का बीज उधर बो पाएंगे। नहीं तो वो हम सिर्फ यहाँ से बोलते हैं, तो वो भी यहाँ से सुनते हैं, कहते हैं हाँ अच्छा है, अंदर नहीं जाता। क्योंकि हम सबकॉन्शियस में डाल के नहीं बोल रहे हैं, हम उस वाइब्रेशन में नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमें 1969 की मुरलीज को, उस किताब को फिर से उठाएं, गो वन मुरली एट अ टाइम, इन ऑर्डर, एज पर डेट। एक भी महावाक्य ना हो जो मुझ आत्मा को अच्छी तरह से समझ नहीं आ गया, अच्छी तरह से समझ नहीं आ गया, उसको अंडरलाइन करें। थोड़ी दिन के बाद वापस उसी मुरली को पढ़ें, क्योंकि जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हम बनते भी जा रहे हैं, बनते भी जा रहे हैं। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सुबह साकार मुरली स्टडी करते हैं, लेकिन हम दिन में या शाम को एक अव्यक्त मुरली जरूर स्टडी करनी है। हमें योग के चार्ट को तो हम सब बढ़ा ही रहे हैं, ये 5 मिनट्स वाला हमें जरूर करना है। खाने और पानी के पहले, जो कि हम बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि बाबा बार बार रिपीट करते हैं कि खाने और पानी से पहले उसी स्थिति में स्थित होकर वो वाइब्रेशन खाने और पानी को जरूर देनी है। आप सोचिए, जैसे ही ऐसी बात आती है तो शहर के पानी की एनर्जी बदल जाएगी, शहर के पानी की एनर्जी बदल जाएगी, क्योंकि सडनली पूरे शहर में, पूरे देश में अगेन पैनिक, अगेन एंजाइटी, again that stress, again that fear. It's directly coming through water. जो कोविड है वो तो किसी को मिलने से ही होता है हमें, सिर्फ अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करें। लेकिन जो फियर एंड एंजाइटी है, उसके लिए हमें किसी को मिलने की जरूरत नहीं होती है। वो शहर के पानी के थ्रू, शहर की हवा के थ्रू आ जाता है हमारे पास, बंद दरवाजों से आ जाता है, वो बंद दरवाजों से आ जाता है।
तो कभी भी नहीं पीना चाहिए पानी और खाना नहीं खाना चाहिए बिना वो बाबा को याद करके शक्तिशाली थॉट्स दिए हुए। लेकिन ऐसे समय पर तो गलती से भी नहीं करना चाहिए। जैसे हमेशा हाथ धोकर खाना खाना चाहिए, वो तो हमें पता है हम करते हैं, कभी कभी शायद नहीं करा होगा, लेकिन कोविड के टाइम पे तो 20 सेकंड के लिए हाथ धोते हैं ना, 20 सेकंड के लिए हाथ धोते हैं ताकि वायरस नहीं आना चाहिए। इसी तरह ऐसे समय पर अच्छे से 10 सेकंड रुक के बाबा को याद करके बाबा की वो शक्तियां खाने में तो हम डालते ही हैं, पानी में जरूर करना है अच्छे से। ऐसे नहीं चलते फिरते हाँ बाबा में, नो, वेट, पहले आत्मा को देखें, बाबा को देखें, वो किरणें मुझ पर आ रही हैं, देखें वो किरणें पानी में जा रही हैं, और फिर वो संकल्प डालें, मैं सत्युगी आत्मा हूं, ताकि मुझे कलयुग के हर वाइब्रेशन के ऊपर उठना है, मैं सत्युगी आत्मा हूँ। ये सब जो संकल्प हम डालना चाहें वो डालें, और हर रोज अलग अलग संकल्प नहीं डालें, अलग अलग नहीं, एक संकल्प का सेट अपना बनाएं और उसको ही रोज यूज करें कई दिनों तक, तब जाके वो अंदर जाएगा। ऐसे आज एक संकल्प, कल एक, सुबह एक, दोपहर को एक, तो नहीं होगा। एक संकल्प को लें, उसी की प्रैक्टिस भी करें, उसी को भोजन और पानी में भी डालें। अगर आप चाय या कॉफी पीते हैं तो उसमें भी डालें, बीच में रुक के फ्रूट खाते हैं तो उसमें भी डालें। इट्स लाइक वॉशिंग एवरीथिंग एंड वॉशिंग द वाइब्रेशन ऑफ एवरीथिंग, हर चीज। अब ये लगता है ओहो इतनी बार दिन में कैसे करेंगे, लेकिन ये 5-5 सेकंड की इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज पावर, ह्यूज पावर। नहीं तो हम सुबह करें मैं आत्मा हूं ये हूं, फिर एक गिलास पानी पी ले, उसमें सारी शहर की एंजाइटी और स्ट्रेस और फियर है, थोड़ी देर के बाद हम कहेंगे पता नहीं मुझे क्यों चिंता होने लगी, मुझे किस बात की चिंता हो रही है। इट्स कमिंग थ्रू द वाटर, इट इज कमिंग थ्रू द वाटर। सो खाना तो हम खाते हैं बाबा को याद करके, लेकिन पानी नहीं पीना। इस समय सिर्फ एक विजुअल अपने सामने ले आइए, शहर की एनर्जी इस पानी के अंदर है। तो आप गलती से भी नहीं पिएंगे पानी, गलती से भी नहीं पिएंगे जब तक आप रुक के उस पानी को शुद्ध नहीं करते हैं, उसको बाबा की एनर्जी, डिविनिटी, सत्युगी वाइब्रेशन से क्लेंस नहीं करते, एनर्जाइज नहीं करते, तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। तो लाइट खाना खाएं, अपने माइंड को लाइट रखें, अपनी बॉडी को लाइट रखें। बाबा कहता है डबल लाइट, डबल लाइट है, हल्के भी है और पवित्रता का भी ताज है। तो इसलिए रात का डिनर जल्दी करें, लाइट करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से थोड़ा ऑपोजिट हो गया है, क्योंकि हम डिनर ही शायद हमारा एक मील होता है जब हम सब घर पे होते हैं वापस, तो हम ज्यादा हैवी खाना उस टाइम खाते हैं। बट नहीं, उसके बाद हमें सोना है, उसके बाद हमें जल्दी उठना है, हमें अमृत वेला अच्छा योग करना है। सो experiment, I have experimented this in the last few months and I can see a distinct difference कि अगर आप अपनी डाइट में थोड़े चेंजेस लाते हैं और अपनी डाइट को थोड़ा लाइटर करते हैं, आपको नंबर ऑफ आवर्स टू स्लीप कम हो जाएगा, आपको ज्यादा नींद की जरूरत नहीं लगेगी, और आप जब सवेरे उठेंगे आप बहुत इजीली एक हायर वाइब्रेशन पे जा सकते हैं। आपको उसके बाद थकावट नहीं लगेगी, आपको अमृत वेले के बाद फिर से नींद करने की जरूरत नहीं लगेगी, आफ्टरनून में भी जरूरत नहीं लगेगी। जस्ट दोस 5-6 आवर्स आर इनफ। व्हाई? बिकॉज हम अपने शरीर को कम काम दे रहे हैं, कम काम दे रहे हैं। हम पहले उसके अंदर ज्यादा भरते हैं, फिर उससे ज्यादा काम करवाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और फिर ज्यादा करने के बाद भी माइंड स्लगिश रहता है। साइंस ने एक चीज बहुत क्लियरली बताई है कि द गट एंड द माइंड इज कनेक्टेड। इस इक्वेशन को पकड़ना है, द गट एंड द माइंड इज कनेक्टेड। इसका मतलब क्या है? इसीलिए लोग बोलते हैं व्हाट इज योर गट फीलिंग। और गट फीलिंग क्यों बोलते हैं? पेट थोड़ी कोई सोचता है, फिर क्यों बोलते हैं व्हाट इज योर गट फीलिंग? गट थोड़ी थॉट्स क्रिएट करता है, विच मीन्स द गट एंड आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर कनेक्टेड। तो हम यहाँ से ज्ञान भर रहे हैं, लेकिन बाबा ने हमें कहा सात्विक भोजन खाना। तो हमने पकौड़े भी बनाए, हमने बर्गर भी बनाया, घर में बनाया सारा कुछ, लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई और हमने कहा मैंने तो भोग भी लगा दिया इसको, तो ये तो सात्विक है। कभी कभी कुछ ऐसा खाएं इज डिफरेंट, लेकिन डेली की लाइफस्टाइल हमारा खाना लाइटर होगा तो बॉडी भी निरोगी रहती है, क्योंकि गट इजी रहता है
और गट इजी रहता है, तो आपको यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट चेंज दिखेगा. Heavy vibrations of food means heavy vibrations of body has an impact on the soul. So इसीलिए बाबा हमें सबसे पहले अपना खान पान बदलने के लिए कहते हैं. खान पान बदले बिना मैं आत्मा हूं तो नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो बाबा कहते हैं बाहर का नहीं खाओ, वेजिटेरियन खाओ, सात्विक खाओ, प्याज लहसुन नहीं खाओ, भोग लगाओ. सी हाउ मेनी थिंग्स आर एसोसिएटेड विद द फूड, ताकि तभी मेडिटेशन अच्छा होगा. लेकिन हमने सात्विक को समझा जो मैंने वेजिटेरियन खाया और घर में बनाया. सात्विक इज हाई वाइब्रेशनल फूड. फ्राइड, बहुत सारे मसाले, बहुत सारा भुना, दिस डजंट कम अंडर सात्विक. इवन दुनिया उसको सात्विक नहीं बोलने वाली है, क्योंकि ये तो बहुत हेवी फूड है. तो एनीथिंग विच इज हेवी फूड, हम कहते हैं नहीं बहुत हेवी मैंने आज खाना खाया. हेवी फूड इज स्लगिश एनर्जी, स्लगिश एनर्जी. तो इसीलिए उस पर भी थोड़ा सा चेकिंग करें. कभी कभी मन करा खाया, ओके. एक और चीज जो उससे होती है ना, हम अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत पाना शुरू करते हैं. हम अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत पाना शुरू करते हैं. अब हम ये नहीं कहते ओह इतना टेस्टी आज ये बना है, वाह. अगर अभी तक हम वो बोल रहे हैं, मतलब हमारा मन की स्थिति कर्म इंद्रियों पर बहुत डिपेंडेंट है, खाने पर डिपेंडेंट है. तो लाइट फूड, वेरी इजी टू डाइजेस्ट फूड. सारा दिन हल्का ही खाना खाएं, अच्छे से खाएं, कम नहीं खाएं, अच्छे से खाएं, बट वेरी इजी टू डाइजेस्ट फूड खाएं. इजी टू डाइजेस्ट फूड कि आपने खाया और वो 1-1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो गया, ना कि आपने खाया और वो 3 घंटा लगा डाइजेस्ट होने में. तो मेरी सारी एनर्जी तो इस पेट की तरफ चली गई. तो मुझे एनर्जी नीचे की तरफ नहीं डालनी है, मुझे एनर्जी ऊपर की तरफ लेकर जानी है. एंड रात का भोजन तो लाइट एंड वेरी अर्ली, नेवर अ लेट डिनर, नेवर अ लेट डिनर. अगर लेट हो जाए तो स्किप कर सकते हैं डिनर, लेकिन लेट डिनर नहीं करते एंड हैवी डिनर नहीं करते. और जैसे ही हम लाइट एंड अर्ली डिनर लेते हैं, हम बहुत जल्दी डीप स्लीप में जाते हैं, क्योंकि डाइजेशन का काम पहले ही पूरा हो गया था. 6:30-7 बजे हमने खा लिया, 9:30-10 बजे हम सो रहे हैं, लेकिन डाइजेशन पहले ही पूरा हो चुका है. सो यू सी, सोने से पहले हमने नींद में होने वाला जो काम है उसको पहले ही पूरा कर लिया है. तो नींद में कम काम करना पड़ता है बॉडी को. तो जब कम काम करना पड़ता है, वो बहुत एनर्जेटिक फील होती है और हम जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि हमारा काम पूरा हो गया. काम कैसे पूरा हो गया? पहले ही पूरा कर लिया था सोने से पहले. आजकल लोगों को अच्छी नींद नहीं आती है. दुनिया में पीपल आर स्लीप डिप्राइव्ड बिकॉज लेट नाइट डिनर, हेवी डिनर, देन टेक्नोलॉजी. ये छोटी छोटी बातें हैं जो दुनिया को अच्छे से सोने नहीं देती है. और जब सोएंगे नहीं अच्छे से, तो सवेरा कैसे सही होगा, मेडिटेशन कैसे होगा? तो ज्ञान योग के साथ साथ अपनी डाइट के साथ भी एक्सपेरिमेंट करें कि रात को सूप, सैलेड या कुछ स्टीम्ड या कुछ बहुत इजी टू डाइजेस्ट, बहुत इजी टू डाइजेस्ट फूड रात का डिनर होना चाहिए. और फिर जब रात को सोने से पहले हम मुरली स्टडी करें और योग करें. 15 मिनट कम से कम, नॉट बाबा रूम में गए, बाबा गुड नाइट एंड सोने चले गए, दैट इज नॉट योग. कम से कम 15 मिनट बैठकर अपने आप को उस अशरीरी स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस में लाएंगे और फिर सोएंगे. तो यहाँ का डाइजेशन भी हो गया था, यहाँ की प्रोसेसिंग भी हो गई. तो 2 काम खत्म हो गए. नहीं तो माइंड और सबकॉन्शियस नींद में प्रोसेसिंग करता है हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो आज रात दिन में हुई. इसीलिए दुनिया भी कहती है सोने से पहले जर्नल लिख दो, सब कुछ जो आज हुआ था वो रिलीज कर दो, वो लिख दो. उसका मीनिंग क्या है? सोने से पहले प्रोसेसिंग जो यहाँ करनी है, सोने से पहले कर दो. तो डाइजेशन सोने से पहले हो जाए और माइंड की सारी प्रोसेसिंग, आज इसने ये बोला, आज ये हो गया, कल वो काम करना, ये सब फिनिश हो जाना चाहिए. उसके लिए 15 मिनट हमें योग करना चाहिए. वो 15 मिनट योग हमारी नींद की इजीली घंटे से ज्यादा बचाएगा, इजीली. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीप स्लीप का एक्सपीरियंस करेगा. तो 15 मिनट विधि पूर्वक बाबा के रूम में बैठ के योग करके, सारा दिन की बातों को सरेंडर करके, कल के क्या करना है वो भी बाबा को बता के, बाबा कल, अब हम इसके बारे में कल काम करेंगे, सरेंडर करके फिर सोएंगे. वेरी सून द माइंड विल गो इनटू डेल्टा स्टेज. और जैसे ही डेल्टा स्टेज में गया, 2 बार एनर्जाइजिंग हो गई, आपको अलार्म लगाना नहीं पड़ेगा, आपकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि आपके दोनों काम हो चुके हैं, डाइजेशन और एनर्जाइजिंग. जब ये दोनों काम होते हैं, माइंड एंड बॉडी बोथ इज लाइक awake. Without alarm, you will wake up before Amrit Vela.
बिफोर अमृत वेला. एंड उसके बाद आपको नहीं लगेगा आज मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, दोपहर का तो रेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा. ओनली बाय स्लीपिंग राइट, स्लीपिंग राइट. और आज क्योंकि दुनिया में राइट स्लीप नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा सोते हैं. तो वो सब नहीं सुनना कि 8 घंटा सोना पड़ता है, 9 घंटा सोना पड़ता है. उनको सोना पड़ता है जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है. So they are actually thinking that they are productive, but they're actually wasting so much time sleeping extra. Extra सो रहे हैं. कितना टाइम वेस्ट हो रहा है. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में कोई 8 घंटा नहीं सोता था. कोई 8 घंटा नहीं सोता था. वो सब लोग सवेरे सवेरे जल्दी उठते थे बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल में ये सारी चीजें थी. सो वी डोंट नीड टू स्लीप मोर, वी जस्ट नीड टू स्लीप राइट. स्लीप राइट. तो ये छोटी 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 बातें हम करेंगे और फिर देखो बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया है बहुत सहज, बहुत सहज, बहुत नेचुरल, क्योंकि बाबा साथ है. तो ये स्थिति की प्रैक्टिस करेंगे तो पुरुषार्थ भी एक नए लेवल पर और सेवा भी एक नए लेवल पर चली जाएगी. वो वृक्ष बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो जाएगा और उस पर सृष्टि की हर आत्मा वो फूल और फल के रूप में लग जाएगी जो बाबा को पहचान लेंगे. शुक्रिया बाबा. ओम शांति. Om Shanti. Wow, that was amazing hour. So I made a bunch of notes for me. I'm sure all of got a chance to make lots of notes. One announcement I wanted to make was ये पूरा session का YouTube recording अनुभूति YouTube channel पर available है. So if you miss some part of it, you can always go and refer back. There were a lot of important lessons. So please do listen back. For me, sister, I'm sure you heard 10,000 hours practice in your that practicing that every hour 5 minutes and then building that over a number of years is how you're going to get better at it. So for me, that was a big takeaway. And then Mera Baba vibrations, right? How do you get that in every street in the whole world? So thank you so much. With that, I just wanted to, if you have questions, please do post it on the chat sessions. But considering the time we have here, I just wanted to recognize a lot of our senior sisters and instruments which we have it. Sister Chandru from San Francisco, who are on the call. Sister Geeta Ben from LA Center, who is on the call. Sister Hansa Ben from Sacramento Center, who is also on the call. Om Shanti Diti. Hema Ben from Anubhuti Center. Om Shanti Diti. Sister Elizabeth Ben. Om Shanti sister. She's also on the call. And then of course, Sukanya Ben, Vaishali Ben, Shanti. San Francisco Center. Thank you. It's such a great event and such a great way to start the year to have all of you on the call. With that, basically we wanted to kind of get to Sister Elizabeth Ben. She has something very nice for us to listen on and close these sessions. So Eben, do you want to get us and bring us home? Sure, thank you, Ronak Bhai. Shanti. Om Shanti, dear friend. Om Shanti. I suddenly have so many visuals on my mind now after seeing you. So many. It's so good to see you. Thank you so much. Yeah, thank you so much for being part of this family and of course Baba's family and bringing us together today on this 1122, the 1st of January 2022. So I have a song of blessings that I'd like to offer to all of you and especially to our dear sister Shivani, a song of blessings. May I always live a
life of peace. May the words Om Shanti ring out for our unity to increase. May every word I speak be strong and true. I will always see the face of God in the face of you. This is the beginning, not the end, of blessings upon blessings, my friends, of blessings upon blessings, my friends. May I always walk the path of love, radiate God's beauty below, inside, above. I will open up my heart each day anew for the love of family, love of life, and the love for you. This is the beginning, not the end, of blessings upon blessings, my friends, of blessings upon blessings, my friends. And you are committed to service. You taught us to change the world through your two hands, with your heart and soul. Yes, you understand. May we always shine our inner light with the colors of the rainbow rising up to brilliant white. And no matter where our choices lead us to, there will always be a place inside our hearts for you. This is the beginning, not the end, of blessings upon blessings, my friends, of blessings upon blessings, my friends. And now we are committed to service. We can change the world through our two hands, with our hearts and soul. Yes, we understand. When I think of mountains caressed by oceans blue, I can see the sacred highland as a part of me and you. And like the stars that warm the darkest night, we will always fill our world with our love, our life, our light. This is the beginning, not the end, of blessings upon blessings, my friends, of blessings upon blessings, blessings upon blessings, blessings upon blessings, my friends. Om Shanti. Om Shanti. Wow, that's so beautifully done, sister. Thank you. With that, I just wanted to make one quick announcement.
that if you want more information or about the future programs, please do visit our website. Again, as Sister Shivani said, there's a lot of content out there. It's for you to consume it and implement that and practice that. With that, I would like to sincerely thank Sister Shivani and all the sisters for joining us here and enlightening us. It's been a great start for 2022, and I'm sure we'll have a lot more opportunity to participate in here, Sister Shivani. So with that, we would like to close the program. Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi. Okay. Thank you very much, Shivani Didi. हमारा अनुभूति अपना घर है. Thank you, Didi. Thank you so much, Didi. Thank you.